Okay, so a very welcome once again to all of you students. Now we are going on to move on to the next type, that is nothing but differentiation of implicit functions. Now before we move on, exactly implicit functions होते कैसे हैं? So just let me explain. Just pay attention, then you can write down. There are two types of functions. Have a look. एक होता है explicit function और दूसरा होता है implicit function. ठीक है, और एक थर्ड टाइप भी है, but that I'm not discussing. That we'll discuss later on. There are two types of functions that we come across right now. That is explicit and implicit function. अब दोनों में basic difference क्या है? What is the difference between the explicit function and the implicit function? So please do have a look over here. Explicit function में तो a function, I'll give you. You just have a look. Patience रखो, बाद में आप लिख लेना मेरा. A function which can be expressed in form of y is equal to fx. A function which can be expressed in the form of y is equal to fx. Such a function is called as an explicit function. तो अभी तक हमने जितने भी functions का derivative लिया था उसमें आप देखो क्या फंडा था, y was present only on the left hand side and all x terms were present on the right hand side. Logarithmic differentiation देख लो आप, composite function देख लो, inverse derivative composite functions देख लो, they were all of these forms. So till now whatever differentiation में types हमने किए हैं cover, they were all explicit functions. तो अभी implicit functions क्या होते हैं? Obviously implicit functions are those functions which cannot be expressed in form of y is equal to fx. Okay, चलो note down, लिख लो आप. Explicit function, a function which can be expressed in form of y is equal to fx is called as explicit. और implicit function क्या होता है? तो a function, ये function का short form है, a function which cannot be expressed in form of y is equal to fx. Such a function is called as an implicit function. ठीक है, let me take down one example also. Say for example ऐसा दिया है x cube minus y cube is equal to 5xy. If this is given to me, this equation is given to me, x cube minus y cube is equal to 5xy दिया है. अभी अगर मैं y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं तो नहीं हो पाएगा. Suppose if I try to shift, just have a look. एग्जाम्पल आप लिख लेना बाद में. तो सपोज इफ आई शिफ्ट, तो ये x क्यूब यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5xy एंड दिस y क्यूब विल बी शिफ्टेड ओवर हियर. अभी ये दोनों में से अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में y तो बच गया ना, तो I cannot express this completely in terms of x. तो जब किसी फंक्शन को हम x के y is equal to fx के फॉर्म में नहीं लिख सकते, such a function is called as an implicit function. तो ये सब implicit functions है. फिर अगर एक एग्जांपल लेना है तो से फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लो, sin of xy is nothing but equal to x square plus y square. अब ये तो एंगल एक्स वाई है साइन फंक्शन का, तो इसको तो हम सेपरेट नहीं कर सकते. यू कैन सेपरेट दिस एक्स एंड वाई, यू कैनॉट राइट डाउन इन फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. सो दैट कैनॉट बी डन. सो सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स और सच काइंड ऑफ फंक्शंस, दो एग्जांपल्स देखे मैंने, सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शन. तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है, दैट इज टू बी लर्नड. एम आई क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस एवरीवन? Yes. ओके, तो ये दो एग्जांपल्स है इम्प्लिसिट फंक्शन के. अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए दे वर ऑल एक्सप्लिसिट फंक्शन. y इज इक्वल टू एफ एक्स. अब देख लो पेज घुमा के, सारे टर्म्स राइट हैंड साइड पे x वाले थे, लेफ्ट हैंड साइड पे y वाले थे, पर अभी कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई मिक्स होगा. ओके, तो चलो लेट अस राइट डाउन द वर्किंग रूल. इसका वर्किंग रूल लिख के देता हूँ आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन के वर्किंग. ओके,
Okay, please note down working rule. Please mute yourself. Someone speaker is on. वर्किंग रूल लिख लीजिए आप जल्दी से, फिर प्रॉब्लम्स पे जाते हैं हम. वर्किंग रूल में राइट डाउन स्टेप नंबर 1. राइट डाउन स्टेप 1. कंसिडर द गिवन इक्वेशन. राइट डाउन कंसिडर द गिवन इक्वेशन. एक इक्वेशन दिया होगा हम. कंसिडर द गिवन इक्वेशन एंड differentiate with respect to x. ठीक है, differentiate with respect to x. ये फर्स्ट स्टेप है. Then step number 2. This working rule is only for your reference. ठीक है, देखो collect all terms containing dy by dx on one side of equality and non dy by dx terms to other side of equality. हाँ, मतलब जब हम डेरिवेटिव लेंगे we have to collect all the terms containing dy by dx. जिसमें dy by dx है वो टर्म्स एक साइड पे आएंगे, जिसमें dy by dx नहीं है वो टर्म्स दूसरे साइड पे लेके जाने हैं हम. We have to collect them. Non dy by dx है, ये माइनस नहीं है. This is non dash dy by dx. ठीक है, non dy by dx terms to the other side of equality. Step number 2. फिर step number 3 लिख लीजिए आप. Final step, step 3. Take dy by dx common. Take dy by dx common and cross multiply. ये वर्किंग रूल है. So ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं स्टूडेंट. इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. We remember the working rule of this. Please make a note of this, or you can take a screenshot of this. Preferably note it down. Shall I rub this off? Yeah, okay. Please make a note of this. Okay. So now let's move on to the problem that are dependent on differentiation of implicit functions. ठीक है, तो यूनिट 7. अच्छा, इसका हेडिंग ऐसा होता है, फाइंड dy by dx if this is the given equation. If this question is asked, it will carry 2 marks. छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. चलिए लिखिए सॉल्यूशन. कंसिडर. Okay, now let's write down this given equation. Now x root x means we can write down this as x to the power 3 by 2 plus y root y means this is y to the power 3 by 2 and a root a means this is a to the power 3 by 2. अभी इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट करेंगे तो u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम. x root x, y root y and a root a रिटर्न दिस वे. अभी हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड dy by dx. अभी तक जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें हेडिंग दिया होता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो वहां पे हम y इज इक्वल टू कंसिडर करके फिर डेरिवेटिव लेते थे. अभी तो इक्वेशन दिया है तो प्लीज रिमेंबर इसमें y इज इक्वल टू नहीं लिखना है. जो इक्वेशन दिया है वैसा का वैसा आपको लिखना है. ओके,
Now we have to find out dy by dx. Write down differentiating with respect to x. Write down differentiating with respect to x. वर्किंग रूल देखो, वर्किंग रूल क्या बोलता है, कंसिडर द गिवन इक्वेशन एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स, चलो लिख देता हूँ स्टेप्स आपके रेफरेंस के लिए. डी बाई डी एक्स विल बी रिटर्न फॉर बोथ द टर्म्स. So this is d by dx of x raised to 3 by 2 plus this is y raised to 3 by 2 and this is d by dx of a raised to 3 by 2. अब डायरेक्टली d by dx स्प्लिट कर सकते हो, कैन बी डन. So therefore this will be written as d by dx of, this is going to become x raised to 3 by 2 plus this is going to become d by dx of y raised to 3 by 2 and let this remain d by dx of a raised to 3 by 2. तीनों का एक साथ लेंगे डेरिवेटिव. ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन. x raised to n का फॉर्मूला. अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, फंक्शन भी x का है और हम डिफरेंशिएट भी हमें उसे x के साथ ही करना है. तो d by dx of x raised to 3 by 2 is nothing but 3 by 2 into x raised to 3 by 2 minus 1. So that's minus, it's 1 by 2 है ना. 3 by 2 minus 1 करोगे तो आपको डायरेक्टली 1 by 2 मिलेगा. प्लस नाउ वील हैव टू बी केयरफुल एट दिस पार्ट. अब ये फंक्शन y का है और डिफरेंशिएट हम x के साथ कर रहे हैं. तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, y raised to 3 by 2 का, इट विल बी 3 by 2 into y raised to 3 by 2 minus 1. So 3 by 2 minus 1 is nothing but 1 by 2 into derivative of y with respect to x आएगा into dy by dx is compulsory and this is nothing but equal to a raised to 3 by 2 is a constant. तो a constant का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है. तो a raised to 3 by 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. अभी आपको ये चीज याद रखनी है, ये मैं आपको बता देता हूं. नाउ सपोज इफ इट इज d by dx of x square, please pay attention over here. I'll explain you this. d by dx of x square is nothing but 2x. We all know that. But suppose if we are finding out d by dx of y square, तो ये y का फंक्शन है पर डिफरेंशिएट हमें x के साथ करना है. तो बाय चेन रूल वी गेट दैट. आप इसको fx रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, fx रेज टू n का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. तो d by dx of y square is what? तो इट इज 2y. जैसे x स्क्वायर का 2x है तो y स्क्वायर का 2y आएगा. बट y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो dy by dx, ये लिखना बहुत जरूरी है. नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज डू रिमेम्बर कि अगर कोई y का फंक्शन है और अगर हम उसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy by dx लिखना कंपल्सरी है. Am I clear the difference between them, everyone? Yes. Yes? Okay. तो वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है. देखो x रेज टू 3 by 2 का डेरिवेटिव है, फंक्शन भी x का है और डिफरेंशिएट भी हमने x के साथ किया है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया डायरेक्टली. बट ये फंक्शन y का है और डिफरेंशिएट हम x के साथ कर रहे हैं, तो वो इनटू dy by dx हमेशा आएगा. y का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx आएगा. राइट हैंड साइड विल बिकम 0. ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट, वी वांट टू फाइंड आउट dy by dx. अभी यहाँ पे ये नॉन dy by dx टर्म है और ये dy by dx है. लेट अस डू द शिफ्टिंग ऑफ द टर्म्स. So write down next step after this. I'm writing on the board. देखो I'm going step wise. Initially मैं सारे steps लिख रहा हूँ. Therefore 3 by 2 into y raised to half into dy by dx is equal to, इस टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा. This term I will shift it to the right. So what will this become? Minus 3 by 2 into x to the power half. अभी देखो इसमें there is only one term containing dy by dx and one term containing non dy by dx. इसमें dy by dx है, इसमें dy by dx नहीं है.
तो जिसमें dy बाई dx नहीं है उस टर्म को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई dx चाहिए, ठीक है ना। नाउ यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, ये 3/2 ये 3/2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर व्हाट इज dy बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो dy बाई dx इज व्हाट, तो माइनस x रेज टू हाफ। चलो और एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसी में, x रेज टू हाफ मीन्स इट इज नथिंग बट रूट x अपॉन ये y रेज टू हाफ नीचे आ जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट रूट y। तो dy बाई dx इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ x अपॉन y, एंड दिस इटसेल्फ इज अवर फाइनल आंसर। यही हमारा dy बाई dx है और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। See, I explained by the working rule what we are supposed to do. Consider the given equation, differentiate with respect to x. तो डिफरेंशिएशन का तो प्रोसीजर वही है जो हम यूज कर रहे हैं, खाली एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू dy बाय dx आएगा, ठीक है। देन dy बाय dx टर्म ऑन वन साइड, नॉन dy बाय dx को शिफ्ट कर देने का, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy बाय dx हमें मिल जाता है हमारा, ओके। यहाँ पे y रिप्लेस नहीं करना है, वी डोंट हैव टू रिप्लेस y, ये बस एज इट इज ही रहेगा। यू डोंट, बिकॉज प्रीवियस इसमें हमने y को रिप्लेस किया था इन टर्म्स ऑफ x, अब y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। So this is to be kept as it is over here. Just give me the clearance. Is this procedure understood to all? Sir. Yes, sir. Okay, very good. चलो now initially I'm going slow because it's a new concept for us. अभी हम जाते हैं second example पे. First example is over. Now let's move on to the second one. Second example है यूनिट 7 में से, and that equation given is, write down, x square plus y square is equal to 6xy. This is the given equation. Again, if this question is asked, it's going to carry 2 marks. ठीक है? Obviously, if you do these questions very properly, अगर आपको ये सारे questions समझ में आ गए, तो आप होमवर्क सेक्शन और जो टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है वो आप एकदम इजीली कर सकते हो, ओके। चलो लेट्स राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो व्हाट डू, वी कंसीडर द गिवन इक्वेशन। तो लिखिए कंसीडर, so write down the given equation. So the given equation is x square plus y square is equal to 6xy. Now after considering the equation, we differentiate with respect to x. So write down differentiating. So ये statement compulsory है, differentiating with respect to x. आप देखो मैं हर एक एग्जांपल में हमेशा लिखता हूँ every time. Now d by dx to be taken on both the sides. Now we can cut short the number of steps. देखो बीच में प्लस साइन है तो d by dx दोनों को स्प्लिट हो जाएगा. This much is allowed. Therefore, what do we get on the left hand side? So d by dx of x square plus यहाँ पे क्या मिलेगा? तो d by dx of y square and right hand side पे 6 constant है, तो 6 constant आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो d by dx of xy. So what we have done, we have taken d by dx on both the sides of equality. u plus v rule apply कर दिया हमने यहाँ पे, और right hand side में constant outside the operator. Now we'll apply u into v rule over here. चलो पहले left hand side का discussion कर लेते हैं. तो we all know function भी x का है, differentiate भी x के साथ कर रहे हैं, तो x square का derivative is 2x, but function y का है, differentiate हम x के साथ कर रहे हैं, तो y square का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? तो इट विल बी 2y into डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. कंपल्सरी है, अगर हम ये dy by dx लिखना भूल गए ना
तो 0 मिल जाएगा. आफ्टर दिस एग्जामिनर विल नॉट चेक व्हाट वी आर डूइंग. तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो वो dy बाई dx कंपल्सरी है. कोई भी फंक्शन रहने दो, लोगैरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, वो dy बाई dx हमेशा आएगा. ठीक है. इक्वल टू 6 रिमेनिंग सेम, u इंटू v रूल. तो x remaining as it is, d by dx of y is nothing but dy by dx. First function as it is, d by dx of second function. So d by dx of y means it is nothing but dy by dx plus second function as it is, y as it is, and d by dx of x is nothing but 1. Close the bracket. प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया है. अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर. तो लेफ्ट हैंड साइड रिमेनिंग सेम, देयरफॉर 2x प्लस 2y dy बाय dx रिमेनिंग सेम. राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर देंगे. उसका रीजन है, आई विल एक्सप्लेन. व्हाट विल RHS बिकम 6x into dy by dx plus 6y. ठीक है, प्लीज नोट डाउन टिल हियर. कुछ नहीं किया, हम सिंपल फंडा यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं. खाली यही यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि अगर y का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इंटू dy by dx आएगा. रेस्ट इज सेम. Okay, now what we have to do, we have to collect dy by dx terms together. So let's bring dy by dx to the left hand side and the non dy by dx to the right hand side. अभी आप देखो वर्किंग रूल. After differentiating, collect dy by dx terms on one side and non dy by dx terms to the other side. अभी ऐसा कोई रूल नहीं कि dy by dx वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर ही लाने हैं. You can take dy by dx terms to the right hand side and non to the left hand side. ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ, वो हमारे ऊपर है. बट सिंस वी आर डूइंग इट टुगेदर वर्किंग, dy by dx वाले टर्म्स को जनरली हम लेफ्ट में लाते हैं और नॉन dy by dx वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं. ओके, so let's follow the general rule only. ठीक है, so let us do the shifting of the terms. टर्म्स को हमें शिफ्ट करना है. चाहिए तो एरो से मैं बता देता हूँ. ये देखो, ये जो dy by dx वाला टर्म है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा. कौन सा, ये पूरा टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. और ये जो 2x है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. तो टर्म्स का साइड चेंज करना है हमें. तो राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, तो विल बी हैविंग 2y dy by dx. ये तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये उधर जाएगा. तो इट इज माइनस 6x इंटू dy by dx. या 6x इंटू dy by dx, करेक्ट. इक्वल टू राइट हैंड साइड में 6y ऑलरेडी है. अब ये पॉजिटिव 2y इधर आ जाएगा और पॉजिटिव 2x इधर आ जाएगा एंड इट बिकम्स नेगेटिव 2x. प्लीज चेक आउट द स्टेप्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज टू बी डन. तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो dy by dx कॉमन आएगा. ओके, नाउ नॉट ओनली dy by dx कॉमन आएगा, इन फैक्ट वी कैन टेक 2 dy by dx कॉमन. दोनों टर्म्स को आप ध्यान से देखो, तो 2 dy by dx कॉमन आएगा दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड में. तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ से y बचेगा और यहाँ से हमारे पास 3x बचेगा. इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे 3y माइनस x इज लेफ्ट आउट. इट्स वेरी सिंपल. collect all the terms containing dy by dx to one side and non dy by dx terms to the other side, then take dy by dx common. देखो मैंने वर्किंग रूल लिख के दिया है आपको, सामने रखो. अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो देयरफॉर dy by dx is equal to what? So it is equal to 3y minus x upon y minus 3x. हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर. यही हमारा फाइनल आंसर है और यही हमारा dy by dx है. ठीक है. अच्छा, अभी ऐसा हो सकता है जो रेफरेंस बुक है या जो टेक्स्ट बुक है या नोट है, जो भी आप बोलो,
तो उसमें द सेम थिंग, ये सेम चीज आपको ऐसा भी दे सकते हैं वो dy by dx. जस्ट हैव अ लुक, दिस सेम dy by dx कैन बी रिटर्न दिस वे ऑल्सो. हो सकता है कि जब आप सॉल्व करोगे होमवर्क सेक्शन के लिए तो ऐसा आंसर दिया होगा. अब स्टूडेंट को क्या लगता है, अरे सर ये आंसर और ये आंसर दोनों डिफरेंट है, ये अलग है और ये अलग है, हमको तो ये आ रहा है, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है. अब ध्यान से देखो, बोथ आर सेम. ठीक है ना. हाउ ऑब्जर्व, क्या करेंगे हम इसमें से, चेकआउट इन द न्यूमरेटर इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन. न्यूमरेटर में अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो ये x माइनस 3y हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 3x माइनस 5 हो जाएगा. एंड माइनस ऑफ माइनस इज नथिंग बट प्लस. तो देखो यही सेम चीज हमें यहाँ पे मिल रहा है. तो वेदर यू राइट दिस और वेदर यू राइट दिस, दे बोथ आर इक्वल. एम आई क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes, sir. ठीक है ना. तो चाहिए तो ये भी स्टेप आप आपके रेफरेंस के लिए लिख लो कि माइनस साइन कॉमन लिया और फिर ये हमें dy by dx मिला. यू कैन एंड अप ओवर हियर. वैसे आप यहाँ पे भी स्टॉप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, इफ इट इज गिवन टू यू, चलो लिख लो पहले आप, आई विल शो यू. जस्ट राइट डाउन टिल हियर, राइट नाउ आप यहीं तक लिख लो. आई विल टेल यू व्हाई. फ्रॉम हियर वी हैव टेकन माइनस साइन कॉमन एंड डन. अच्छा, अभी अगर आप ये जो dy by dx वाले टर्म्स राइट हैंड साइड पे लेके जाते और नॉन dy by dx वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते ना, तो पहले आपको ये आंसर मिलता. ठीक है, फिर आपको ये आंसर मिलता. तो दैट इज नॉट एन इशू. व्हाई ही हैज टोल्ड अस फाइंड dy by dx. बट सपोज अगर वो हमें ऐसा देता, if would have given this way, check the another way of writing this same question. ये सेम क्वेश्चन वो हमें कैसा पूछ सकता है, राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस, लिख लो नोट. अगर ऐसा देता, इफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy, देन prove that dy by dx is equal to x minus 3y अपॉन 3x माइनस वाई. अगर ऐसा क्वेश्चन देता वो, लिख लो. हाँ, आगे जाके ये हमें करना है, बट these changes can be made. This question can be asked in another way. If x square plus y square is equal to 6xy, then prove that dy by dx is this. अभी आप बोल नहीं सकते अरे आशीष सर ने तो हमको ये प्रॉब्लम करवाया ही नहीं क्लास में, ऐसा वाला कुछ मतलब ही नहीं है इसका. तो प्रोसीजर इज सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. वी विल कंसिडर दिस इक्वेशन, वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी विल प्रूव dy by dx. अच्छा, जब हम प्रूव कर रहे हैं तो चलो सपोज आपको मिला ये dy by dx जैसा मिला, तो यू कैन स्टॉप द आंसर ओवर हियर. अगर प्रूव करने को दिया है तो आपको माइनस साइन कॉमन लेके ये आपका फाइनल स्टेप हो जाएगा. बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है प्रोसीजर में, टोटली सेम इट इज. एम आई क्लियर विद दिस एवरीवन? ठीक है ना. तो प्रोसीजर वर्किंग रूल इसीलिए लिख के दिया है मैंने, क्योंकि प्रॉब्लम्स को हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें प्रोसीजर को याद रखना है. रिमेंबर द प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर क्या बोलता है, वर्किंग रूल जरा निकालो नोटबुक में आप. एवरीवन ओपन अप. व्हाट डज द वर्किंग रूल सेज? कंसीडर द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है सेकेंड स्टेप, collect all the terms containing dy by dx on one side and non dy by dx terms to the other side. फिर स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, take dy by dx common and then cross multiply, that will give you your dy by dx. तो ऐसा भी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्रूव दैट कैन बी डन. करने हैं, वी आर गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल. अभी तो वो फाइंड बोला है, फिर बाद में हमको प्रूव दैट वाले भी क्वेश्चंस करने हैं. So if you have any difficulty in understanding, please do ask. Otherwise, this question is also over. इसका ध्यान रखना है, ये y वाले टर्म्स का स्पेशली ध्यान रखना है. Please make a note of this.